Assalamualaikum dear students. So in this video we are going to start question number 3 of exercise 7a. Question number 3 of exercise 7a. So the topic is number sequence. So if you haven't watched the video of question number 1 and 2, so first of all you have to watch these videos to make your concept more stronger. Okay, so the first as I told in previous videos that we have to check that the sequence is increasing or decreasing. So you can clearly check that the sequence is decreasing because this is -5 and -7, and -7 is smaller than -5, so the sequence is decreasing. Similarly, -11 is smaller from than -7, so this sequence is decreasing. So first of, if this sequence is decreasing, then we have to subtract or divide. So यहाँ पर जो है वो subtract हो रहा है. So what is the difference between 5 and 7? 5, 6, 7. So two differences. So we have to subtract -2 from 7. So we have to subtract -2 from 7. Similarly, I am writing here so to make your concept more clear. So minus will be minus plus, and 5 and 2 क्या होता है -7. Similarly, the next term is -7. Okay, so now the difference between 7 and 11 is 8, 9, 10, 11. So the difference between -7 and -11 is 4. So we have to subtract -4. We have to subtract -4. Okay, so if we subtract -4 from -7, so we'll get -11. So we'll get -11. Okay, now similarly here we have -11, and we have the difference between 11 and 19 is 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, and इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 8, -11, -8. So minus plus 8 में 1 ऐड करेंगे 9, so we'll get -19. So we'll get -19. So as I have read the definition of sequence, so sequence follow a definite rule. Sequence follow a definite rule. लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लग रहा है कि शायद कोई definite rule follow नहीं हो रहा है. यहाँ -2 करें, फिर -4 करें, -8 करें. So basically this sequence follow a this type of sequence is called quadratic sequence, and this sequence follows a definite rule. So we have -2 here. We have -2 here. And here we have -4. So -2 से हमने -4 कैसे बना सकते हैं? So we have to multiply by. So we have to multiply by 2. So it means that here we have -4. So we have to multiply it by 2. So we have to multiply it by 2. So basically ये sequence कौन सा rule follow कर रही है? If you check that कि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टर्म में से माइनस किया है, यहाँ पर उसका डबल करना है और फिर उसको माइनस कर देना है. यहाँ पर जो हमने -7 में से क्या माइनस किया था? -4. अब नेक्स्ट टर्म में हमने क्या कि -4 का डबल कर देना और फिर माइनस कर देना. नाउ अब ये जो है हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये यहाँ पर -8 है, तो इस -19 में से हमने क्या माइनस करना है? -19 में से हमने क्या माइनस करना है कि -35 बन जाए. सो हम क्या करेंगे? इस -8 का हम करेंगे डबल. -8 का हम क्या करेंगे? डबल. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो -8 का डबल करेंगे, सो वी विल गेट 16. -16. सो -8 का डबल करेंगे, सो वी विल गेट -16. ओके, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -16 फ्रॉम -19. यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं 19 एंड 16. -19 एंड -16. सो द माइनस विल बी प्लस. 9 plus 6, 15, 5, 1 carry 1 and 1, 2 plus 1, 3. So we have -35. Similarly, now you have to pause this video. You have to pause this video to guess what we will subtract from -35 to get next term. -35 से हमें क्या subtract करना होगा ताकि हमें next term जो है वो मिल जाए. ठीक है. So फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने -16 सब्ट्रैक्ट किया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. सो 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2s are 32. 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6 are 12, 1 कैरी 2 1 2 3. सो यहाँ पर हमें 32 जो है वो माइनस करना पड़ेगा. सो हेयर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -32. ओके, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 32, we have -35 and -32. So minus will be plus. 5 plus 2, 7, 3 and 3, 6. So we will have 67. So we have next term that is -67. And now what we have, अगर आपने ये गेस सही नहीं किया था, आप पॉज करें वीडियो एंड गेस डैट कि हमें नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से क्या माइनस करना होगा. हम सो वी विल मेक डबल ऑफ दिस. So we'll make double of this number
तो हमने ये इसको डबल कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। सो 32 को डबल करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, सो विल गेट -64, विल गेट -64. So now we have to subtract -60 from -60, -67 -64 equal 7 plus 4 will be 11, 1 carry 2, 6 and 6 12 and 1 13. So we have to subtract the next term is -131. I hope ये आपको clear हो गया होगा, and if you still have any confusion, so you can ask freely in comments. So now we are going to solve part B of this question. We are going to solve part B of this question. In part B we have 1 1 and then 2 3 and 5. Okay, सो एज दिस सीक्वेंस इज़ इंक्रीजिंग, जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर ये सेम रह रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर फिर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर फिर जो है वो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कोई ऐड नहीं हो रहा। सो कोई डेफिनेट रूल नहीं बन रहा है इसका। सो यहाँ तक इसका कोई डेफिनेट रूल जो है वो नहीं बन रहा। सो वी हैव टू चेक दैट कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस। सो वी हैव टू चेक ये तो हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था ना कि हमने वो चेक करना, जस्ट लाइक हमने इसमें किया क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में। सो यहाँ पर जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चल रहा। सो वी हैव टू चेक अनदर पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so you can think about this by pause, by stop this video. Okay, so the first term is 1 and the next term is 1, and there is no difference between these two terms. Similarly, so you can check that if we add these two terms, 1 plus 1, so you will get 2. You will get 2. 1 plus 1 करेंगे, so you will get 2. Similarly, प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आएगी। मतलब अगर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हमने प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करना है। सो हम अगर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को हम ऐड करें, 1 plus 1 करें, सो विल गेट 2। सिमिलरली हम यहाँ पर 1 plus 2 करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3। सिमिलरली 3 plus 2 करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, 5। तो 3 plus 2 करें, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5। अब देख लें कि यहाँ पर हम क्या करें, प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करें। सो हियर वी हैव 5 plus 3, सो दिस विल बी 8। सो 8 plus 5 एंड दिस विल बी 13। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव टू ऐड टू टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। सो 1 plus 1 विल बी 2, 2 plus 1 विल बी 3, 3 plus 2 विल बी 5, 5 plus 3 विल बी 8, 8 plus 5 विल बी 13। ओके, सो यहाँ पर एरोज ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यू कैन check this question. So in part C, we have a sequence 4, 16, 36, 64, and then 100. So the difference between 4 and 16 is 12. ठीक है, सो यहाँ पर 12 डिफरेंस है इनके दरमियान, यहाँ पर 18 डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 32 डिफरेंस है। सो यहाँ पर जस्ट लाइक हमने इसमें किया था। अब देखो यहाँ पर 12 से 18 हम बना ही नहीं सकते, +6 कर रहे हैं, यहाँ पर +6 करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें फिर जो है वो अच्छा बेसिकली ये जो सीक्वेंस है तो इसमें ये प्लस वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रही। सो ये आपको ना थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है आपको वो रट्टा वाला कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है कुछ इधर लिखते हैं। सो नाउ वी हैव 1 square इक्वल 1, 2 square मीन डबल ऑफ 2, मतलब square mean multiplication of a number by itself. 2 square will be equal to 4, and then what will be the 3 square? 3 square will be equal to 3 3s are 9, and what will be the 4 square, and this will be 16, and what will be the 5 square, and this will be 25. 6 square will be equal to 36, 6 multiplied by 6. 7 square will be equal to 49, and 8 square will be equal to 64,
and 9 square will be equal to 81, and 10 square will be equal to 100. 10 multiplied by 10. Similarly 11 square will be equal to 121, and 12 square will be equal to 12 12s are 144. Similarly 13 square will be equal to 169, and 14 square will be equal to, so ये हम चेक कर लेते हैं 14 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है. So 14 multiply by 14, 4 4s are 16, 1 carry, 4 1 5, 4 1s are 4 5, and then we have 4 1s are 4 and 1 1s are 6, 5 4 9, 196. So basically square mean multiplication of a number by itself. So 11 का square आप 11 को 11 से multiply करें, so you will get 121. Okay, so you have to check that here we have 4. First of all we have 4, so this is the square of 2. 2 square will be equal to 4. And similarly then we have 16, 4 square will be equal to 16, and then we have 36, 6 square will be equal to 36, and then we have 8 square that will be equal to 64, and then we have 10 square that is equal to 100. Okay, so basically this is a sequence of square, sequence of square, sequence of square, sequence of square, sequence of square ऑफ इवन नंबर. ये जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर है, और सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर भी किन का है, और जो है इवन नंबर का. देखो 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, और इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 स्क्वायर मीन 4, 4 स्क्वायर मीन 16. मतलब ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, मतलब 2 4 6 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है. अब 10 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 12. सो द नेक्स्ट टर्म विल बी द स्क्वायर ऑफ 12. द नेक्स्ट टर्म विल बी द स्क्वायर ऑफ 12, एंड दैट इज़ 144. अब 12 से नेक्स्ट जो हमारे पास इवन नंबर आता है दैट इज़ 14, एंड 14 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 196. 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196. सो बेसिकली दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट डी. पार्ट डी. इन पार्ट डी वी हैव 1 minus 8 minus 27, sorry, 1 minus 8, 27, and then minus 64, and then 125, and then 125, and then the next two terms, so on. Okay, so now so this sequence also do not follow a specific rule. So this is the cube, sequence of cube. This is a sequence of cube. So first of all we have to check that what is cube. So 1 cube mean multiplication of 1. ठीक है, 3 times multiplication of 1, 3 times multiplication of 1. 1 cube mean equal 1. Similarly 2 cube will be equal to 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So we will get 2 cube that is equal to 8. Similarly if we take 3 cube, 3 cube mean 3 multiply by 3 multiply by 3, and this will be equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. Similarly 64, 4 multiply by 4 multiply by 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64. So 4 cube will be equal to 64. Similarly next we have 5 cube, and 5 cube will be equal to 5 multiply by 5 multiply by 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125. I hope आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब. यहाँ पर क्या था, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ क्यूब, सीक्वेंस ऑफ क्यूब. सो first of all we have to check that here we have -8 and -64. So we will take the cube of -2 and this will be equal to -8. Similarly -4 cube and this will be equal to -64, because ये सीक्वेंस में ये दोनों माइनस हैं. अब देखो जो हमारे पास ऑड नंबर हैं उनका पॉजिटिव, उनका क्यूब लेना है हमने. पॉजिटिव ऑड नंबर्स का क्यूब लेना है.
I'm repeating again. I know this question is a little bit difficult for students, so but you can make your concept clear by watching again from this point. ठीक है, I am repeating again, so you can also watch again to make your concept more stronger. Okay, so here we have 1 cube, this is equal to 1, 3 cube will be equal to 27, and then minus 4 cube equal to minus 64. ये देखो जो हमारे पास इवन नंबर है ना, नेगेटिव इवन नंबर का हम क्यूब ले रहे हैं, नेगेटिव इवन नंबर का क्यूब ले रहे हैं. अब देखो 5 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6. इवन नंबर है तो इसका हम नेगेटिव क्यूब लेंगे, सो वी विल टेक माइनस 6 क्यूब इक्वल टू, एंड देन हमारे पास इनके बाद 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, ऑड नंबर आता है 7. 7 जो है हमने उसका पॉजिटिव 7 का क्यूब लेंगे. अब माइनस 6 का हमने क्यूब लेना. मैं आपको ये, अच्छा मैंने बच्चों को ना जब एक्सरसाइज 2A करवाता हूँ तो उनको ये क्लियर हो जाता है कि जो नेगेटिव नंबर होता है ना बेटा, देखो वी हैव सपोज -2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4. कैसे, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस. सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव. लेकिन नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है ना बेटा, वो नेगेटिव होता है. कैसे, देखो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, विल गेट माइनस माइनस प्लस 4, एंड देन +4 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस विल गेट -8. मतलब जो नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो हेयर वी हैव टू टेक द क्यूब ऑफ -6. सो हेयर वी हैव टू टेक द क्यूब ऑफ -6. बेटा मुझे याद है कि इसका क्यूब क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना, आप जो है वो कर सकते हैं. 6 6 ज़ार 36 एंड 36 6 ज़ार 216. नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव, एंड 6 का क्यूब करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी इक्वल टू -216. एंड हेयर वी हैव टू टेक द क्यूब ऑफ 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 ज़ार 63, 3 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 34. सो वी हैव 343. So here we have -216 and then 343. So यहाँ पर जो हमारे पास 1 2 3 4 5 में से जो नेगेटिव ऑड इवन नंबर हैं उनके नेगेटिव का स्क्वायर करना है, और जो ऑड नंबर है उनके पॉजिटिव का हमने क्यूब करना है, सॉरी, ठीक है, टू गेट द नेक्स्ट टर्म्स. So in last we have a sequence that is okay, so we have space over here, so we can 1 3 9 27, 1 3 9 and 27, so on. We have to write next two terms. So okay, how can we get as this sequence is increasing. बेटा ये आपको ना थोड़ा सा याद रखना, मैं इधर स्टार बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर होगा. मतलब आप ना वैसे याद करें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह आप स्क्वायर और जो है वो क्यूब्स जो है वो नंबर के याद रखें, तो ताकि आप जो है वो कन्फ्यूज़ हो ही ना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए. ओके, नाउ वी विल यूज़ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू ऐड और मल्टीप्लाई. सो 1 में हम 2 ऐड करें 3 आता है, 3 में हम 7 ऐड करें तो 9 आता है, लेकिन कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं हो रहा. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 विद 3 सो विल गेट 9. सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई 3 with 3 will get 9, and if we multiply 9 with 3 will get 27, and if we will multiply 27 with 3 so we'll get 81, and similarly if we multiply 81 with 3 so we'll get 243. So this is the part E of this this question, and I hope ये आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. And if you still have any confusion you can ask in comments. So if this video is helpful for you, kindly like this video, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Take care students, goodbye and Allah Hafiz.